Vishwari online chemistry classes for class 12th English medium. Let's continue the chapter. The chapter is alcohol, phenol and ether. In previous video of this chapter, I was explaining you the all methods of preparation of alcohol. Now today I am going to start the केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। ओके, प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हम लोगों ने अल्कोहल कैसे कैसे फॉर्म कर पाएंगे मेथड्स उसके सारे कर लिए हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनिश हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके, नाउ द नंबर वन केमिकल प्रॉपर्टीज इज नंबर वन रिएक्शन विद सोडियम। When ROH, it means alcohol, react with sodium, it liberates H2 gas. H2 gas निकलेगी, so here we take 2 molecule of ROH. So H2 gas is removed and RONA. Here is 2 molecule of R, so we take also 2 Na and gives 2 molecule of NaOR. What is this? It is sodium alkoxide. Sodium alkoxide. It is sodium alkoxide जो विलियमसन सिंथेसिस में यूज किया गया था। It is sodium alkoxide. CH3 होगा sodium methoxide, C2H5 हो जाएगा sodium methoxide, and in this reaction H2 gas क्या होगी, निकलेगी। Okay. Now the second chemical property is reaction with sodium hydride. The formula of sodium hydride is NaH. When ROH react with NaH, it also liberate hydrogen gas. यहाँ से भी आपकी H2 गैस निकलेगी। So क्या बन जाएगा RONA plus H2। RONA को हम लोग RONA को कैसे लिख दें NaOR प्लस H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी एंड सेम फॉर्मूला सोडियम एल्कोक्साइड हमको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो दीज टू रिएक्शंस आर कंप्लीटेड। नंबर वन रिएक्शन विद सोडियम एंड रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और आल्सो नोन एज एसिड क्लोराइड। ओके, नाउ वी मूव टू थर्ड केमिकल रिएक्शन। Number third chemical reaction is reaction with acid chloride. What is the formula of acid chloride? The formula of acid chloride is CH3COCl. Okay, what happened when CH3COCl react with alcohol? Let's see. CH3COCl, it means it is acid chloride react with ROH अल्कोहल। ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे HCl निकल जाएगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ HCl क्या मिलेगा CH3COOR। यहाँ पे क्या मिला हमको CH3COOR प्लस HCl। ये क्या मिल गया ईस्टर मिल गया। What is the formula of ester? RCOOR। अब ये R डिपेंड करेगा कि कौन सा ईस्टर मिला है। When we take CH3 here, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे एथिल को लेंगे तो यहाँ पे C2H5 हो जाएगा। एंड इस रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? इस रिएक्शन का दूसरा नेम जो है ACYLATION, that is acylation. This reaction is known as acylation. What क्या है acylation? In acylation reaction, alcohol react with acid chloride to form ester. Okay, now इसी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एग्जांपल में ROH की जगह C2H5 ले लिया। ओके, क्या बनेगा फिर CH3C double bond to Cl and ethyl alcohol is C2H5OH. Now after the removal of HCl, it gives CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। इसका नेम क्या है? इट इज एसीटेट CH3COO। एन लगाओ सोडियम एसीटेट, वोल्टेज लगा के सी लगा दो, दैट इज कैल्शियम एसीटेट। यहाँ पे C2H5 लगा है, इट मींस एथिल, और इसका नेम क्या है इतनी यूनिट का? एसीटेट। तो पूरा नेम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। एंड आफ्टर और क्या निकलेगा? HCl। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एसाइलेशन। तो ये मैंने एसाइलेशन का एग्जांपल लिया। अगर यहाँ पे हम मेथिल अल्कोहल लेंगे, ये क्या लिया हम लोगों ने? एथिल अल्कोहल।
अगर हम लोग मेथिल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर मेथिल एसीटेट बन जाएगा, C2H5 के प्लेस में क्या आ जाएगा, CH3। तो इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन एंड इट इज द third chemical properties reaction with acyl chloride. Now we move to number 4 chemical properties. इसको रख कर रही हूँ मैं। Reaction with acid anhydride. Okay, what is acid anhydride? CH3 C double bond O, CH3 C double bond O link with O, 2 units of CH3CO connected with O. Okay, books में कैसे लिखा रहता है, CH3CO का whole twice O, that is acid anhydride and it react with alcohol. Now let's see, CH3 C double bond O का whole twice CH3 C double bond O react with alcohol, that means ROH. Okay, now in acid anhydride whenever जब भी कभी भी acid anhydride आपका रिएक्ट करेगा उसमें आप या तो ये बॉन्ड तोड़ोगे या तो ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड डिसोशिएट होता है, एक यूनिट आपका निकल के आएगा CH3CO और एक यूनिट क्या निकल के आएगा CH3COO. Now we break this CO bond, so CH3COO connect with this H and क्या रिमूव हो जाएगा, CH3COOH. क्या निकला, CH3COOH, that is एसिड, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, प्लस क्या बन जाएगा, CH3COOR, CH3COOR ईस्टर, जो आपका एसाइलेशन में फॉर्म हुआ था वही कंपाउंड यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है when react with acid anhydride and this reaction is known as acetylation. When acid anhydride react with alcohol, this reaction is named as acetylation. और क्या फॉर्म हो रहा है, esters are formed, ester. For example, in the place of ROH, we take ethyl alcohol here. So ethyl alcohol is C2H5OH. After the removal of acetic acid, what is formed, CH3COOC2H5 here. CH3COOC2H5, that is ethyl acetate. So this is the number 4 reaction, 4 chemical property क्या है, reaction with acid anhydride. Now move to number 5th chemical property, that is reaction with acid. Okay, reaction with acid. Okay, alcohol react with acid. For example, RCOOH react with alcohol, that is ROH. Here removal of water and what is formed, esters are formed, RCOOR plus HOH. Remember student, this reaction takes place in the presence of H plus or H2SO4, because in H2SO4 act as a dehydrating agent and it absorb water. अगर यहाँ पे H2SO4 वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा देन दिस रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन आपकी क्या कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी. दीज टू रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अल्कोहल एंड एसिड. तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, इरिवर्सिबल रहे, इसके लिए हमको यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में H2SO4 लेंगे which act as a dehydrating agent and also catalyst. This reaction is known as, because esters are formed, so this reaction is known as esterification reaction. Esterification. What is esterification reaction? In esterification reaction, acid react with alcohol to form ester and removal of water in the presence of H2SO4. Okay. Now यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. Suppose acetic acid, that is CH3COOH react with C2H5OH. After the removal of water
क्या मिल जाएगा? दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दैट गिव इट प्लस आयन, सो इट गिव CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 and HOH is removed. Okay, what is this? It is ethyl acetate. देख रहे हैं स्टूडेंट, अभी हम लोग ने लास्ट 3 रिएक्शन में एथिल एसीटेट ही फॉर्म किया है। व्हेन जब आपका अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड इट गिव ईस्टर, और हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसमें एथिल एसीटेट फॉर्म हो रहा था। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्रेट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन एंड इन व्हिच एथिल एसीटेट इज फॉर्म्ड, एंड व्हेन alcohol react with acid this reaction is known as esterification, and in this reaction also क्या form हो रहा है? ethyl acetate. Okay, now move to next chemical properties. Reaction with PCl5 and PCl3, ये रिएक्शन हम लोग अल्किल क्लोराइड वाले चैप्टर में यानी कि हैलोएल्केन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बिकॉज इन दैट चैप्टर हैलोएल्केन में हम लोगों ने अल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 और PCl3 इट गिव अल्किल क्लोराइड। ओके, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स में पढ़ा था। लेते हैं क्या होता है? ROH दैट इज अल्कोहल रिएक्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल PCl5, so it give RCl that is alkyl chloride, and also give POCl3 that is phosphorus oxychloride and HCl. Now we take one example like C2H5OH react with PCl5, it give RCl. What is R here? That is C2H5, so it gives C2H5Cl plus POCl3 that is phosphorus oxychloride and HCl. Now the second reaction is alcohol react with PCl3, so alcohol react with PCl3, it give also here RCl, यहाँ से भी आपको RCl ही मिलेगा plus H3PO3. Now for balancing the reaction को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेके चलेंगे, देन यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl मिलेगा, दैट इज H3PO3 is orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid. Now यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल C2H5OH के 3 मॉलिक्यूल लेंगे आप प्लस PCl3, it give 3 C2H5Cl plus H3PO3. Now this reaction is complete. It is reaction number 5, that is the reaction with PCl5 and PCl3. Alcohol react with either PCl5 or PCl3, it give alkyl chloride. Okay, चलिए नंबर नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। Number next is reaction with thionyl chloride. Reaction with thionyl chloride. What is thionyl chloride? It is SO2Cl2. It is SOCl2. Sorry, SOCl2. Okay. When alcohol react with SOCl2, it give RCl. It give RCl plus sulfur dioxide and HCl. ये रिएक्शन भी हम लोगों ने अल्किल हैलाइड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी थी, दैट इज डायजन रिएक्शंस। ओके, यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं, दैट इज C2H5OH plus SOCl2, it give C2H5Cl plus sulfur dioxide plus HCl. ओके, ये आपकी रिएक्शन होगी रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड से। नाउ मूव टू नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, that is dehydration of alcohol. ओके, इट इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन और इस रिएक्शन में हम लोगों को मैकेनिज्म भी पढ़ना है। ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपका 2
प्रोडक्ट देता है विच इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे हम इसको, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर कैसे करेंगे, अल्कोहल इज हीटेड एट सर्टेन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफाइन करेगा हम कितने टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होगा। ओके, अगर हम 443 केल्विन पे इसको हीट कराते हैं देन हमको यहाँ से मिलता है एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। एंड अगर हम इसको 413 केल्विन पे हीट कराएंगे एंड कौन सा, सेम रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देन हमको यहाँ पे ROR मिलेगा, दैट इज ईथर मिलेगा। तो टू प्रोडक्ट्स हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे, इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर कराएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। इफ वी हीट इट एट 413 केल्विन देन इट गिव ether, and when we heat it at 443 केल्विन टेम्परेचर इट गिव एल्कीन। और दोनों का क्या पढ़ना है बच्चों, मैकेनिज्म भी पढ़ना है। तो रिएक्शंस लिख लेते हैं, मैकेनिज्म इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, रिएक्शन क्या हो जाएगी, अल्कोहल दैट इज ROH react with, for example मैंने ले लिया C2H5OH, CH3 CH2OH, it is ethyl alcohol and it heated at 443 Kelvin temperature in the presence of H2SO4, concentrated H2SO4 के presence में इसको heat करेंगे because H2SO4 act as a dehydrating agent here and reaction में देखेंगे क्या इसका और वर्क है। तो after the removal of water is removed, OH यहाँ से और H यहाँ से, then क्या मिल जाएगा, CH2 double bond CH2 at 443 Kelvin temperature। Now सेकेंड में क्या है, अगर इसको हम 413 Kelvin पे हीट करेंगे then we take two molecule of alcohols। okay, so here we take two molecule of CH3 CH2OH। let's see here, ROH के 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे हीट कराए एट 413 केल्विन पे। तो यहाँ से वाटर का रिमूव हो जाएगा एंड क्या मिल जाएगा, ROR, ईथर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल लिया, इसको हीट कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एट 413 केल्विन टेम्परेचर। आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर व्हाट विल ऑब्टेन, CH3 CH2 OCH2 CH3, that is diethyl ether। so okay, these two reactions are important with मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डील करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म पे जो हम लोग केमिकल, नेक्स्ट वीडियो में जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, एक तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, नंबर नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड नंबर थर्ड इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। देन इसको करने के बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल खत्म हो जाएगा। आई होप आज का केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगा। थैंक यू।